Okay, so the recording has already started. Now my question to you is, like, first of all, we are having our class after very long time. Like, I don't know, in the past month we even had a class or not. Okay, so I don't know whether you remember or not where we left in the last class. So please confirm once that we are done with this part. Comparison of ratios. ये हमने किया है, याद आता है आपको? Comparison of ratios. How we determine which ratio is greater or which ratio is lesser than the other one, or either these two ratios are equal. So आपको आता है? अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, so can you determine कि कौन सा रेशो बड़ा है, कौन सा रेशो छोटा है? Can you do it? Students, I need responses from everyone. Okay, you have to type something in the chat box. If you know the answer, then you have to type yes. If you don't know the answer, you can simply put no in the chat box so that we can revise the things. Okay, and that would be better for you as well, isn't it? So comparison of ratio आता है सब लोगों को? Tell me, everyone. Ayush, Vaishnavi, Vedant, Vinit. Okay, Vedant says yes, Ayush says no, Vinit says no. Okay, and what about who's remaining now? Vaishnavi. Vaishnavi, are you going to give me the answer? Okay, if she's not giving the answer, that means the answer may be no. So first of all, we will revise the comparison of ratio part, and I feel that we have already seen this, and I'm damn sure that you people know what exactly ratio means. Okay, so we have seen basics of ratio as well. Now, comparison of ratio. Now, let us suppose we have the numbers a, b, c, d, and these are positive. Okay, these a, b, c, d are positive. Comparison of ratio a by b and c by d can be done. So, see, a by b is a separate ratio. C by d is a separate ratio. So, this is the first ratio. This is the second ratio, and now we are going to compare this. Okay, okay, Vedant. Yeah, I will repeat it. No problem. Okay, so so we have two ratios here. First one is a by b, second one is c by d, and now we have to determine whether this a by b is greater or a by c is c by d is greater. Okay, now how do we determine this? So see, these are the rules. So these three rules are there. First rule is if a multiplied with d is greater than b multiplied with c. See, ad is greater than bc, then a by b will be greater than c by d. ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में a बाई बी है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में a इंटू डी है. ठीक है, सो a इंटू डी अगर बड़ा है, सो दैट मीन्स, जस्ट अ मोमेंट गाइस, लेट मी गिव मी 30 सेकेंड. Okay, sorry, I'm back. Sorry for the interruption. Okay, so this is how we determine which ratio is greater in these two ratios. Similarly, अभी यहाँ पे सेकंड में देखो, अगर a a multiplied by d is smaller than or lesser than b multiplied by c, then the first ratio is smaller than the second ratio. ये हम डिसाइड करते हैं. और अगर a into d is equals to b into c है, then दोनों भी रेशो कैसे है? दोनों भी रेशो इक्वल है. सो अभी आई होप आपको एक थोड़ा सा रिवीजन हो गया ना कंपैरिजन ऑफ रेशो का, तो आप इजीली इनको डिटरमाइन कर पाएंगे. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू two ratios and you will tell me which one is greater. Okay, remember the thing, you have to tell which ratio is greater. Okay, so the first ratio that I give you is 2 by 5. Okay, this is first ratio, and the second ratio is 7 by, sorry, okay, 7 by 6. So the second ratio is 7 by 6. So which ratio is greater? Students, can you tell me? First one or second one? Which one is greater? First ratio is greater or second ratio is greater? Can anybody tell? You just have to write the number, whether it is first one or whether it is second one. So see, यहाँ पे, yeah, okay, Vinith has given answer, that is
Sorry for the. Okay, so Vedant and Vinit says second ratio is greater, and which is correct answer. See, अभी हमें कैसे determine करेंगे? So 2 into 6 is 12 and 5 into 7 is 35, right? So which number is greater? Now अभी विनीत और वेदांत को छोड़ के बाकी दो लोग बताइए, 12 में और 35 में कौन सा नंबर बड़ा है? Which number is greater? There are two other students here, no? Ayush and Vaishnavi. So can you tell whether 12 is greater or 35 is greater? Which one is greater? 35 is greater. Okay, so Ayush has finally given answer. Great. Now, what about you, Vaishnavi? Are you there in the class? I think you are there. So if you are there, you have to give answers. Okay, please be involved. Okay, so this is how we determine which ratio is greater. Now, take one more example. So let us suppose this one. This one. Take this example and tell me which ratio is greater, whether it is first one or second one. Quickly, you have to solve it very quickly. 4 eights are how much? 32, right? And 7 nines are 63. So I guess it should be second ratio again. Second ratio should be greater, right? 63 is greater than 32. So that's why second ratio is greater than the first one. Okay. Now any confusion, doubt, कोई है आपको? अगर नहीं है so we can take the next part. Okay. I hope it is clear for everyone. Students, please make sure that you give answers very quickly so that we can go ahead quickly, isn't it? It would be boring for you if we don't go ahead. Okay, so I take your answer as you have understood the things. Okay, now let's go to the next question. If A and B are integers and A is smaller than B is greater than 1, then compare these two. So see, this is very interesting example if you can understand. Okay, so यहाँ पे हमें क्या बोला है? A जो है वो B से छोटा है और B जो है वो 1 से बड़ा है. B है, B जो है वो 1 से बड़ा है. तो अभी मुझे बताना कि A की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? What are the possible values of A? कोई बताएगा मुझे कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ए? एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप बता दो. मतलब इतने सारे वैल्यूज रह सकते हैं ए के, दे आर इनफाइनाइट, बट कैन यू टेल मी वन वैल्यू आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट नंबर्स? Students, I don't know whether why you are not replying, but I don't expect such classes. Okay, I need interaction from your side, isn't it? Yeah. Okay, good, Vedant. So tell me, which number can be there? What can be the value of A? अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि A और B दो इंटीजर्स हैं. ओके, इंटीजर्स मीन्स व्हाट, यू नो, राइट? अभी A और B दो इंटीजर्स है एंड A इज स्मॉलर देन B, मतलब A की जो वैल्यू है वो B से छोटी है और B की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है. B की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब A की वैल्यू 1 से छोटी हुई, right? Value of A is smaller than 1. Yes or no? Yes. Yeah. So A की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, so what is the possible value of A? 1 से छोटा क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, राइट? सो ये सारे नंबर जो है वो 1 से छोटे हैं. Now this question wasn't in our syllabus, but I just wanted to check your um, what we can say, how much you are concentrating on the class. Okay, so you guys are not giving answers. I'm really like it's only 11 minutes and I have started feeling like I'm talking to a computer. Maybe I'm not taking a class. Okay, so मुझे ऐसा feel नहीं होना चाहिए. Students, you have to respond quickly. Okay, ठीक है.
सो अभी हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है a-1 डिवाइडेड बाय b-1, ये हमारा पहला रेशो है, और a+1 बाय b+1 ये हमारा दूसरा रेशो है। ओके, सो इसका इन दो रेशो में पहला रेशो बड़ा है या फिर दूसरा रेशो बड़ा है, या फिर क्या मतलब इनका हमें कंपैरिजन करना है। उन्होंने क्या बोला है, देन कंपेयर दीज टू रेशोज। नाउ सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सी, अगर a b से छोटा है, a b से छोटा है, तो a-1 जो है वो b-1 से छोटा हुआ होगा ऑब्वियसली। तो मान लीजिए कि a की वैल्यू जो है वो 0 है, b की वैल्यू जो है वो क्या है, b की वैल्यू 1 है मान लीजिए फॉर इंस्टेंस। ठीक है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, मतलब b बड़ा है, a छोटा है। अभी a में से हम 1 निकालेंगे, दैट मीन्स 0 माइनस 1 इज -1, एंड b-1, दैट मीन्स 1 माइनस 1 इज 0। तो फिर भी a माइनस b इज ऑलवेज स्मॉलर देन b-1। ठीक है, a अगर b से छोटा है तो a-1 भी b-1 से छोटा ही होगा। ओके, नाउ कंसीडर द सब्ट्रैक्शन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये दो रेशोज है, इनकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट व्हाट हैपेंस, सी, अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है नहीं आती है मुझे आई डोंट नो। ओके, और अगर जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि वेदर यू नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नॉट। ओके, सो अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो मैं समझ लूंगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है, एंड आई विल स्किप दैट स्टेप। ओके, सो बताइए, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है? हाउ डू वी क्रॉस मल्टीप्लाई टू रेशोज? यस और नो? यस, ओके, गुड, गुड। आयुष नोज, आयुष को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो बता दो, मैं आपको एक बार समझा दूंगा। ओके, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आपको अगर नहीं आता है तो वो नहीं ही आएगा, क्योंकि आपने यू डोंट लाइक आस्क द क्वेश्चन। ओके, ग्रेट, सो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप, तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट रेशो माइनस सेकंड रेशो किया। सी, हमारे दो रेशो है, हमने एज इट इज रखे। नाउ यू विल आस्क मी, सर व्हाई डू वी सब्ट्रैक्ट दिस, क्यों हमें सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कहीं पे भी देखो, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। इजंट इट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं ना, 4 into 8 एंड 9 into 7। सो उस तरीके से क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं हम। सो व्हाई नॉट डू हियर, सो सी व्हाट हैपेंस, a-1 विल बी मल्टीप्लाइड विद b+1। सी, इस a-1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस b+1 के साथ में, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस इज। ओके, सो a-1 मल्टीप्लाइड बाय b+1, यहाँ पे हमने लिख दिया, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। और अभी b-1 इंटू a+1, तो a+1 इंटू b-1 यहाँ पे हमने लिख दिया, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल बी हैविंग b-1 इंटू b+1, तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया। ओके, सो अभी देखो, a into b, a into b is ab, right, and -1 into b is minus b. Now this a into 1 is a, and -1 into +1 is -1। तो ये जो माइनस है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। सो अगेन a into b is ab, and +1 into b is b only, then +1 sorry, a into what is remaining now, yeah, a into -1 is minus a, and +1 into -1 is नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये हमारे दो ब्रैकेट आ गए। अभी नीचे हमने यहाँ पे क्या किया, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, isn't it? आपने ये फॉर्मूला देखा है ना कि a-1 इंटू ए प्लस सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम हमने यही किया है। ए क्या है हमारा, ए एक्चुअली यहाँ पे बी है, तो ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर लिखेंगे हम। हमारा बी जो है वो यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ व्हेन वी विल ओपन अप दिस ब्रैकेट्स, सो व्हाट हैपेंस, सी, यहाँ पे ये पॉजिटिव ए बी है तो नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बी है तो नेगेटिव बी, नेगेटिव ए है तो पॉजिटिव ए, एंड नेगेटिव ए 1 है तो पॉजिटिव 1 बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी से ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। अभी क्या बचा,
So this is minus b, this is minus b, this is positive a, this is positive a, this is negative 1 and positive 1, these will get cancelled. ठीक है? So a plus a is 2a and minus b is minus 2b. So divided by b square minus 1. तो ये एज इट इज हमने रख दिया. अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में हमने वो 2 को बाहर निकाल दिया, 2 को कॉमन निकाल दिया. सी, एंड बी स्क्वायर माइनस 1 जो डिनोमिनेटर था हमारा वो हमने एज इट इज रख दिया. नाउ सी, नाउ a इज स्मॉलर देन b, ये हमें पता है. a इज स्मॉलर देन b, ये हमें पता है. सो when we take this b to the left side, यहाँ पे अगर हम लेंगे तो a minus b should be smaller than 0. ठीक है? a minus b should be smaller than 0 and also b square minus 1 should be greater than 0 because b is greater than 1. अभी b अगर 1 से बड़ा है, राइट, सो b स्क्वायर माइनस 1 जो है वो ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही होगा. तो सी, a माइनस बी जो है वो हमारा था 0 से छोटा और b स्क्वायर माइनस 1 जो है वो है हमारा 0 से बड़ा. लेकिन सिंस इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, 0 से छोटा है, a माइनस बी 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है. a माइनस बी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है स्टूडेंट्स. डिड यू गॉट दिस? अभी इस पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू है वो बिकॉज ऑफ दिस a माइनस बी बन जाएगी नेगेटिव. राइट, ये नेगेटिव है अभी. सो नेगेटिव क्यों है? सो ये नेगेटिव है, इसके लिए हम इसे 0 से छोटा लिख सकते हैं, दैट इज लेस देन 0. isn't it? See, this value is negative, that's why we write it as less than 0. Now what does that mean? ये जो हमारा इक्वेशन था 2 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ये हमने डिराइव किया था इस इक्वेशन से. राइट, इसी इक्वेशन से डिराइव किया था ना. तो इसकी वैल्यू मैंने फिर से ओरिजिनल वैल्यू जो है वो लिख दी एंड ये जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है. नाउ अभी ये जो माइनस वाला है ये पार्ट, ये इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा. 0 प्लस दिस थिंग विल बी दिस एंड वी डायरेक्टली हैव द कंपैरिजन. वी डायरेक्टली हैव द कंपैरिजन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. गॉट इट? कंपैरिजन कैसे किया समझ में आया? कहां पे कौन सी वैल्यू रिप्लेस की समझ में आया? Okay, yes. Okay, I only expect one answer at least. So आयुष ने आंसर दे दिया है, that is fine. So similarly मुझे याद आता है कि हमने ये एग्जांपल भी लिया था. Okay, so इस एग्जांपल में भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है. आई थिंक हमने ये प्रैक्टिस सेट भी लिया है. प्रैक्टिस सेट में कई सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं. ओके, सो अभी मैं इस प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा समय ना गवाते हुए हम अभी नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज वो हम लेंगे. ओके, सो यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने जो अबव जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने एज अ होमवर्क दिए थे. सो आई डोंट नो वेदर यू ट्राइड इट और नॉट. So if you had tried, you could have asked me doubts, but I don't know whether you have tried it or not. Okay, so you please try them. Although हमने कुछ लिए हैं, कुछ बाकी है, so you please try them. If you feel like this is a hard question or this is a question that I need help with, you can tell me in the next class. Okay. I'm so sorry because of that coughing in between. Okay. Okay, so next one, operations on equal ratios. Using the properties of equality, we can perform some operations on ratios. Let's study them. Let us learn some properties of the equal ratios. A, B, C, D are positive integers. तो यहाँ पे जो कुछ names है like invertendo, dividendo, so these sounds to be quite funny names, but at the same time they are confusing as well. Okay, so please be clear with every name. Like if you have been asked to perform this operation, you have to perform that operation only. Okay, you don't have to be, you don't have to confuse between two operations. So इसे किस तरीके से ध्यान में रखना है? So इसके नाम में ही what उसका ऑपरेशन जो है वो छुपा हुआ है. So first operation is invertendo. So invertendo means what? Inversion, invert.
ये पहले ही लिखा है ना यहाँ पे इन्वर्ट। सो इन्वर्ट का मतलब क्या होता है कि हमें उल्टा करना है। लाइक सी, यहाँ पे इफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी दिया है, दो रेशोज इक्वल है, ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है। सो इन रेशोज को अगर हम इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या होगा? बी बाई ए इज इक्वल्स टू डी बाई सी। सो दिस इज इन्वर्टेंडो। ओके, सो इस तरीके से आपको इन्वर्टेंडो ऑपरेशन ध्यान में रखना है। नाउ ये ऑपरेशन तो हमने मान लिया कि ये जो व्हाट वी कैन से, ये जो प्रॉपर्टी है ये बुक में दिया है, इसके लिए हम मान लेते हैं, लेकिन हाउ कैन वी प्रूव दैट? हमें प्रूव भी तो करना पड़ेगा। सो लेट अस सी कैन वी प्रूव दिस। सो ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है, तो बी और सी का मल्टीप्लीकेशन होगा, ए और डी का मल्टीप्लीकेशन होगा, ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। सो सी नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू डी, यानी कि हमने क्या किया, उन्हें सिर्फ उल्टा कर दिया, सिर्फ उल्टा कर दिया, isn't it? Now what we are doing is we are dividing by a into c, a into c। अभी दोनों साइड में अगर हम a into c से डिवाइड करते हैं, so उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। am I right or wrong? हम किसी भी इक्वेशन में अगर दोनों साइड में कोई चीज ऐड करते हैं, कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कोई वैल्यू डिवाइड करते हैं, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर डूइंग दैट ऑपरेशन फॉर बोथ द साइड्स, राइट और रॉन्ग, हम दोनों साइड के लिए वो कर रहे हैं ना। सो इससे उस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने a बाई सी से मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड किया। वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके। Is it for everyone? Ayush is saying that voice is breaking. Vineet, Vedant, and Vaishnavi, can you confirm whether the voice is clear or it is breaking? No? Okay. So, Vineet, yeah, Ayush, I think you may be having, you might be having some network issues at your side. You can please check that. Okay. Okay. So we'll move further. Now, see, after dividing, what happens? So यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में क्या होता है, इस सी के साथ में ये सी कट जाएगा, इस ए के साथ में ये ए कट जाएगा, तो क्या बचा फिर यहाँ पे बी बाय ए इज इक्वल्स टू डी बाय सी। सो दिस इज द आवर प्रॉपर्टी एंड विच इज नाउ प्रूव्ड। ओके, सो next property is alternando. So what exactly happens in this property? So we are alternating the things, yeah, or we are alternating the values. So how do we do that? If a by b is equals to c by d है, तो हम इस c और b को अल्टरनेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। ओके, सो सी दीज टू वैल्यूज कैन बी अल्टरनेट। नाउ सिमिलरली अभी आप इस ए और डी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसे कोई एज सच इशू नहीं है, इजंट इट? ओके, सॉरी, वेट जस्ट अ मोमेंट। सो दिस इज अल्टरनेंडो ऑपरेशन। तो इसमें क्या है, हम बी और सी को अल्टरनेट कर रहे हैं। लाइक सी ए बाई सी इज इक्वल्स टू बी बाई डी हुआ अभी, तो इसका भी प्रूफ हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम इक्वेशन लिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, और अभी यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड बाय सी से डिवाइड करने की वजह या फिर जगह हमने सी मल्टीप्लाइड बाय डी से यहाँ पे दोनों साइड में डिवाइड किया, तो डी डी कट जाएगा and this c will get cancelled. So what is remaining? A by c is equals to b by d, and hence our alternando operation or alternando property is uh, proved, isn't it? We have proved it. So the third one is componendo. Now componendo is see, a if it is a by b is equals to c by this is the c by d, this is the ratio given, then what we can do is a plus b by b is equals to c plus d by d। तो ऐसे ये दोनों रेशियोज भी इक्वल रहेंगे। ओके, सो ये प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान में रखनी है। अभी कंपोनेंडो के लिए कुछ हम ऐसे स्पेसिफिकली ध्यान में नहीं रख सकते, लेकिन अल्टरनेंडो एंड इन्वर्टेंडो के लिए हम ये ध्यान में रख सकते हैं, जो मैंने चीजें आपको बताई। So it can be again proved. How can we do that? So a by b is equals to c by d हमने लिखा, दोनों साइड में हमने 1 ऐड कर दिया, adding 1 to both sides. So again b by b, that means a plus b by b is equals to c plus d by d. So this is again, this property is proved. It is very simple proof given here, isn't it? So there is no like big logic, so that I have to explain it to you, right?
So then next we have is divide endo. So in the divide endo, what we are going to do, a by b is equals to c by d है, तो हमें पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ऐड कर रहे थे, a प्लस बी बाई बी कर रहे थे, अभी हम a माइनस बी बाई बी करेंगे, मतलब कॉम्पोनेंडो में हम ऐड करेंगे और डिवाइडेंडो में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, डिनोमिनेटर को. So this is our dividendo property. Again next we have is componendo dividendo. So this is what we can say, mixed property, or uh, simultaneously we are performing both the operations here. So यहाँ पे क्या होगा, a by b is equals to c by d है, तो हम जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी बाई c माइनस डी, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू b एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू d. तो अभी ये जो दो कंडीशंस दिए हैं यहाँ पे, a और b इक्वल नहीं होने चाहिए, c और d इक्वल नहीं होने चाहिए, ये क्यों दिए हैं? सो माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, why there is a is not equal to b and c is not equal to d condition is given. बाकी सब जब हमने किया तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी थी उन्होंने, लेकिन इस कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो ऑपरेशन में उन्होंने ये कंडीशन क्यों दी? कैन एनीवन टेल? या एटलीस्ट किसी को समझ में आया कि ऐसा क्यों कंडीशन यहाँ पे दिया है, a is not equals to b and c is not equals to d? Students, I need answers in yes or no. If you understood this or if you want to tell this to all of us, then you can say yes. If you didn't get it, अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो you can simply write no. Okay, fine. That's fine, Vinit. No. Okay, okay. Yeah. So see, यहाँ पे A is not equals to B और C is not equals to D की कंडीशन इसलिए दी है because अभी देखो यहाँ पे मान लो कि a is equals to b है. फॉर एन इंस्टेंस वी विल अंडरस्टैंड a is equals to b है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, मुझे बताना जरा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? a और b की वैल्यू अगर इक्वल है तो a माइनस बी क्या होता है? जीरो होगा, जीरो होगा ना. a माइनस बी विल बी जीरो, मतलब a और b अगर सेम ही है, मान लो a की वैल्यू भी 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, तो 5 माइनस 5 जीरो होगा. सो जीरो कहां पे आ रहा है? जीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में, मतलब डिवाइड बाय जीरो हो रहा है, isn't it? So is it allowed to perform this operation? डिवाइड बाय जीरो कितना होता है? Is it defined? It is not defined. The value is not defined. Okay, we can never divide by zero. So a और b अगर इक्वल है तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा. सिमिलरली इन द राइट साइड c और d अगर इक्वल है तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए. There should not be zero in the denominator. I hope you get it, right? Shall we move further? किसी को अभी भी कोई doubt? And I'm very glad that all of you have given the quick responses for the last question. Okay, no doubt. That's great. Okay, great. Now I'm very happy that you students are replying so fast. Okay, so let's move further. So this is a property called componendo dividendo. General form of componendo and dividendo is this. So you don't need to like go through all of this. You can simply solve examples based on this. So this is the what we can say short summary of whatever we have learned. So invertendo is we have to invert both of we have to invert both numerator as well as denominator for both the ratios. उसके इसे हम इन्वर्टेंडो कहेंगे. उसके बाद में आता है अल्टरनेंडो, सॉरी अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो में हम क्या करते हैं, बी और सी को ही सिर्फ अल्टरनेट करते हैं. देन वी हैव कॉम्पोनेंडो. कॉम्पोनेंडो में हम न्यूमरेटर्स के साथ में डिनोमिनेटर्स एक बार ऐड करते हैं. डिवाइडेंडो में हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है. सो दिस इज डिवाइडेंडो. एंड कंबाइनली वी हैव वन मोर ऑपरेशन दैट इज कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो. सो इसमें हम ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. सो यही ऑपरेशन है जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं. सो आई होप कि आप लोग इस ऑपरेशन को परफॉर्म बहुत इजीली कर पाएंगे, इजंट इट? सो अभी perform this operation if a by b is equals to 5 by 3.
then then find the value of this, find the ratio this. Who can do it? A by B is equals to 5 by 3 है. Who can get the value? This is for you students. A by B is equals to 5 दिया है, तो हमें रेशो निकालना है A plus 7B divided by 7B, and also tell me which operation is this. I hope you are doing. If you are not doing, then please let me know that you don't know answer, okay? Because I'll be waiting here. I'll be thinking like you are solving on your notebook, and then I'll wait for you for 1 or minute, and then you will say that, sir, we didn't solve. So this is waste of time, isn't it? So if you're solving, then I'll wait for 1 minute. If you're not solving on your notebook, you can simply write no here in the chat box. Okay. So nobody has written no in the chat box. That means you have your notebook in your hand along with pen, and you are solving this example. And I hope somebody is very close to answer as well. Who's that? Who's gonna give the answer? Okay, it is alternando operation. Is it so? Okay, we'll check. What is the value of this ratio, guys? वैल्यू निकालना है हमें इस रेशियो की. Nobody? Shall I? Okay, I will. Okay, okay, fine. So I like these quick responses. Okay, who's that? Let me just check. What about you, Vaishnavi and Vinith? Are you solving or shall I solve it? No, you're not solving. Okay, no problem. So see, अभी यहाँ पे पहली मेथड है, दूसरी मेथड है. So somebody has said it is alternando. How is that? Let us see. So a by b is equals to 5 by 3 है. Then a by b is equals to b by 3 is equals to k हो सकता है. तो ये हम alternando ऑपरेशन यूज करके ये स्टेप तक हम पहुंच गए. तो अभी what is k? Don't bother about it. k क्या है इसकी आपको समझ आ जाएगी. Okay. So a is equals to 5k है. सी अभी a बाय 5 इज इक्वल्स टू के हमने लिखा है, तो जब 5 यहाँ पे जाएगा तो a इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू 3 के हो जाएगा. ओके, सो सी a प्लस 7b डिवाइड बाय 7 बाय b. सो यहाँ पे 5k प्लस 7 इंटू 3k. अभी 5k यानी कि क्या? 5k यानी कि वैल्यू ऑफ a, 7 एज इट इज, b इज द वैल्यू दैट b की वैल्यू जो है वो 3k है. तो यहाँ पे हमने लिख दिया. डिनोमिनेटर में भी हम b की वैल्यू एज इट इज रख देंगे. सी हमें इस की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे और डिनोमिनेटर में भी b की वैल्यू रखेंगे. तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? ओके, देन a प्लस 7b डिवाइड बाय 7b हमने लिख दिया. सो 5k प्लस 21k डिवाइड बाय 21k हुआ. तो अभी इस 21k को हम कट कर देंगे. बराबर होगा ऐसे कट? कैन वी डू दिस? आई होप यू डोंट. हम नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे एडिशन है ना. सो 5k प्लस 21k यानी कि हमें 26k लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा 21k. गॉट इट? So it would be equal to 26 by 21. So this is one method. Now second method is we have a by b is equals to 5 by 3, and then we can write it as a by 7b. that is हमें b को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से मल्टीप्लाई करना है. So 3 7 21 होगा. और a प्लस बी डिवाइड 7b डिवाइड बाय 7b प्लस सॉरी डिवाइड बाय 7b इज इक्वल्स टू दिस. सो ये हमें आंसर मिलेगा. मतलब दोनों मेथड से हमें आंसर सेम ही मिलता है, राइट? सिर्फ थोड़ा सा जो है स्टेप्स का डिफरेंस है. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू, अब मैं आपको रिकमेंड क्या करूंगा कि जो पहली स्टेप है
हमने लिखा है ना यहाँ पे कि a बाय 5 इज इक्वल्स टू b बाय 3 इज इक्वल्स टू k। सो ये स्टेप आप एग्जाम में लिखना है, आपको यही स्टेप एग्जाम में लिखना है, बिकॉज दिस इज दैट स्टेप, दिस इज दैट मेथड विच इज गोना गिव यू फुल मार्क्स। ओके, सेकेंड स्टेप जो है that is also going to give you full marks, but this is the most correct method. First one is the most correct method. Okay, so तीसरी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जो कि आपको कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में यूज नहीं करनी है, अनलेस इट इज एमसीक्यू एग्जाम। मतलब एमसीक्यू एग्जाम है तो उसमें आप यूज कर सकते हो, आपके स्कूल के एग्जाम में इसे आप यूज नहीं कर सकते, आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो सिंपली क्या मेथड है, a बाई बी इज इक्वल्स टू 5/3 दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू 5 पकड़ लेता हूँ, b की वैल्यू 3 पकड़ लेता हूँ। ए की वैल्यू इज 5, बी की वैल्यू इज 3, रख दो वैल्यू यहाँ पे, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो। कैसे रखेंगे, सी, ए की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, और बी की वैल्यू जो है मैंने 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा, और जो डिनोमिनेटर में है वो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा। सो 5 प्लस 21 इज 26 एंड 7 3 21, मतलब आंसर तो यहाँ पे भी आ रहा है, राइट, दो स्टेप में आंसर आ रहा है सिर्फ, इजंट इट? बट दिस विल नॉट गिव यू मार्क्स इन एग्जाम। एमसीक्यू पेपर अगर रहेगा तो आप ये कर सकते हैं। I hope you get all of the three methods. तीनों मेथड आपको समझ में आ गए, and I hope there is no problem in talking in Marathi as well, because all of us understand Marathi, right? Okay, so now next one. This one should be solved by you. You can use first method, second method, third method, whichever method you can use. कोई भी मेथड आप यूज करो, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मुझे दो विद इन अ मिनट। Students, whenever you sit for mathematics class, it is necessary that you must have a notebook and pen in your hand. Okay, you're not watching a video on YouTube, or you're not watching any movie, right? You are studying, so you need to have a notebook and pen with you. Okay, so anyone got the answer? No one? It's pretty simple, isn't it? A by B agar is equals to 7 by 4 diya hai, then find the ratio of 5A minus B divided by B. Okay, Ayush has got the answer. And is it correct or wrong? Okay, let us check. What about others? Is it the same answer for everyone, or Ayush, which operation do we perform? Are we performing here? Which operation are we performing here? Actually, which operation looks like? यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं? Any idea? Okay, Vinith also has got the answer. Alternando? No, it's not alternando. It is dividendo, isn't it? हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना डिनोमिनेटर को, या इट्स डिवाइड इंडो, ठीक है? सो या दिस इज हाउ, सो आंसर इज आल्सो 31/4। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं मेरी मेथड से आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ए की वैल्यू हमने क्या माना यहाँ पे, सॉरी, ओके, सो ए की वैल्यू जो है हमने माना, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5, सो 5 into 7 minus 4 divided by 4, so 7 5s are 35, 35 minus 4 divided by 4, so that means 31/4. That's it. Is it 34 by, sorry, 31/4? So let us check the answer. Yeah, 34 1/4, 31/4. That's it. Okay, so this answer, quick one, quickly solve it quickly. Now this should be easy, students. Now don't tell me that like we cannot solve it. I expect answer from at least Vedant and Vaishnavi. You guys can give the answer, because for the last question you didn't give the answer, right? Yeah, students, come on, give me the answers. Solve on your notebook.
ए बाई बी इज इक्वल्स टू 7/3 है। ठीक है, तो हमें रेशो क्या निकालना है, ए प्लस टू बी डिवाइड बाय ए माइनस टू बी। तो पहले आप यहाँ पे आंसर लिखोगे और उसके बाद में हमने कौन सा ऑपरेशन यूज किया वो लिखोगे। सिर्फ इनिशियल्स लिखोगे तो भी चलेगा। अल्टरनेंडो के लिए आप ए लिख सकते हो, इन्वर्टेंडो के लिए आप आई लिख सकते हो, कॉम्पोनेंडो के लिए सी, डिवाइडेंडो के लिए डी एंड कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो के लिए सी डैश डी, ऐसे आप लिख सकते हो, राइट। सो what is the value and what is the operation that we are performing here? Anybody? It's pretty simple, isn't it? Don't you think so? Okay, nobody has got the answer. I'm really shocked. ठीक है, so यहाँ पे सी ए की वैल्यू मैं 7 मान लेता हूँ, बी की वैल्यू मैं 3 मान लेता हूँ। सो ए की वैल्यू रख दी मैंने 7 यहाँ पे, प्लस 2b यानी कि 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू अगेन 7 माइनस 2 इंटू 3। So 7 plus 2 into 3 is 6, that means 13. And 7 minus 6 is 1. So answer should be 13 only. Or 13 by 1. Whatever you can write. So I did not understand the method you are talking about. Okay, you did not understand the method I'm talking about. So Vedant method is pretty simple. ठीक है, a by b is equals to अगर हमें 7/3 दिया है ना, तो हम a की वैल्यू फॉर एन इंस्टेंस 7 मान लेते हैं, b की वैल्यू 3 मान लेते हैं और a और b की वैल्यू पुट अप करते हैं, दैट्स इट, वी गेट द आंसर। सो जो लेंथी मेथड है, लेंथी मेथड्स ये है, यहाँ पे हम a की वैल्यू 7m मानते हैं, b की वैल्यू 3m मानते हैं और फिर से हम a और b की वैल्यू पुट अप करेंगे, then m gets cancelled and finally we have our ratio. So this is method 1, this is method 2 and lastly we have method 3 that I have told you. Okay, so which operation is there? यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है स्टूडेंट्स? componendo dividendo, isn't it? cd, देखिए ना, न्यूमरेटर में एडिशन है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन है, सो दिस इज अ componendo dividendo operation performed here. Okay, so you can do that here also. It's pretty simple. यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू रखनी होती है उस रेशो की. Again you can find out this also. Okay, and yeah, so this should be the last question I'll be taking. Then find the value of this one. Okay, तो 5x is equals to 4y दिया है, तो कैसे करेंगे हम? सी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड का मतलब लेता हूँ क्योंकि इट्स टाइम। ओके, सो 5x इज इक्वल्स टू 4y है स्टूडेंट्स, y यहाँ पे जाएगा, 5 यहाँ पे आएगा, राइट। सो x बाय y इज इक्वल्स टू 4/5 हुआ, x बाय y इज इक्वल्स टू 4/5 हुआ, ये स्टेप आप समझ लो। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 16 होगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 होगी, राइट। एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 4/5 है, तो एक्स स्क्वायर पर 16, वाई स्क्वायर होगा 25। सो रख दो यहाँ पे वैल्यू, 3 इंटू 16 प्लस 25 divided by 3 into 16 minus 25. So 3 into 16 is how much? 16 twos are 32, 32 plus 16 is 8, 48, 48 plus 25 divided by 48 minus 25. So 48 plus 25, that means 73, and 48 minus 25 is 23, I guess, right? So 73 by 23 should be the answer which is there. I hope you get it right.
So yeah, students, that's it for today. That was the last example for today. And application of properties of equal ratios. तो ये जो हमने अब आज प्रॉपर्टीज सीखी है, सो इस इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए. जो क्वेश्चंस हमने 2-3 क्वेश्चंस ड्रॉप किए, लिए नहीं है, वो भी आप सॉल्व कीजिए. एंड देन विल सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी है, इनका यूज क्या है, ये हम अगले क्लास में सीखेंगे. ओके, सो आई होप जो भी हमने आज कुछ सीखा वो आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट. यू कैन लीव द क्लास. बाय बाय. Vineet, please leave the class.